بھائی اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال کر لیں، اگر ہو تو ایک بار میں ایک سوال کریں، اجازت سے سوال کریں۔ جی کاروبار بنانے جاتے ہیں اور فیس پیک کرتے ہیں، کتنے روپئے پہلے دن دیں گے، 2 دن میں جھاڑ۔ ان کا سوال یہ ہے کہ لوگوں نے جھاڑ پھونک کو دھندا بنا لیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھو جی، دینداری کا معاملہ یہ ہے کہ جتنے نبیوں کا ذکر قرآن میں ہے انہوں نے دین کے کبھی پیسے نہیں دیے۔ اس حدیث سے بات ثابت ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہو تو وہ لے سکتا ہے، لیکن اتنا جس کو اس کی ضرورت ہو، کوٹھی بنانے کے لیے نہیں، اپنے پلازے بنانے کے لیے یہ دھندا بنا کے، یہ میرے نزدیک میں ناجائز ہے بالکل۔ کہ معصوم لوگوں کو پھنسا کے انہیں یہ کہنا کہ تیرے اوپر جادو ہے، تیرے اوپر اوپر ہے، تیرے اوپر جن ہے، اور پھر انہیں چکر کٹانے ہوتے ہیں، انہیں تعبیر گرمیوں میں پھنسا کے ان سے پیسے اکٹھے کرنے، یہ بڑے گناہوں میں ہے میرے نزدیک۔ ایک حدیث پاک میں نبی نے بات فرمائی ہے 3 چیزوں کی کمائی حرام ہے۔ ایک عورت کی کمائی، کہ جاب والی عورتیں نہیں جو پردے میں جاب کرتی ہیں، ٹیچر وغیرہ، بلکہ آپ سمجھ جاؤں گے عورت کی کس طرح کی کمائی۔ دوسرے کتے کی کمائی، کتے کی خرید بیچ کی کمائی۔ تیسرے تعبیر کرنے کی کمائی، مطلب کاہن کی کمائی۔ یہ تینوں تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے پیسے لیا کریں۔ اگر ضرورت مند ہے تو کوئی منائی نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو بالکل اللہ کے نام پہ کام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت برکت ہوگی پیسے۔ ہاں جی، آپ بولیں۔ میں بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ لیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ ان کا سوال یہ ہے سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، اگر غلطی سے پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائی جان بوجھ کے نہیں پڑھنی، کیونکہ اللہ نے نہیں اتاری، غلطی سے نکل گئی کوئی حرج نہیں۔ میرے سے بھی کئی بار نکل گئی، اس لیے میں بتا رہا ہوں غلطی کی اسلام میں پکڑ نہیں ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کے اگر مطلب ہر دھر بھی کریں گے پھر پکڑیں آپ جب جی اگر پیسے لینا جائز ہے ہدیے کے طور پہ، تو قرآن میں سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ ان کے اوپر لعنت ہے اور جو اس سے کماتے ہیں اس کے اوپر لعنت اللہ کے نام۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر پیسے لینا جائز ہے تو قرآن میں جو آیت ہے ان پہ لعنت جو اللہ کی آیت ہے وہ بیچتے ہیں، کہ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں وہاں مقصد اور ہے کہنے کا، وہاں مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کماتے تھے دین کے نام پہ۔ وہی میں اب بھی کہہ رہا تھا، آج بھی جو لوگ پہ دنیا کما رہے ہیں، مان لو انہیں ضرورت نہیں ہے، میرے جیسا آدمی جس کے پیچھے اتنا ہو اور میں اس سے پیسے بنانے لگوں، ان معصوم لوگوں سے جو ایک یقین کے ساتھ میرے پاس آ رہے ہیں کہ ہم کسی اللہ والے کے پاس جا رہے ہیں، تو میں اللہ والا کہاں ہوا؟ میں تو فرعون والا ہوا۔ تو وہ ایک یقین کے ساتھ آ رہے ہیں اللہ کے ہاں، ان کے عقیدے کے حساب سے ان کا حساب ہوگا، لیکن میری پکڑ میری سوچ اور میری انٹینشن کے حساب سے ہوگی۔ اگر میں انہیں گمراہ کروں گا، مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا کسی پہ جادو ہے، کسی پہ جن ہے یا کسی پہ اثر ہے، میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا۔ اگر میں یہ گمراہی یہاں کروں گا لوگوں کو اور مجھے معلوم ہے، اس کا مطلب میں جھوٹا ہوں، پھر میری جھوٹ میں پکڑ ہوگی۔ حضور نے فرمایا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو میں کیوں اپنی آخرت داؤں پہ لگاؤں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ میرے پاس بھیج رہا ہے، یہ اللہ کے فرشتے، اللہ کے مہمان ہیں میرے پاس آنے والے، اللہ نے میرے سے ان کا عقیدہ جوڑ دیا، ان کا بھروسہ جوڑ دیا، اور میں ان کی جیبوں پہ نظر رکھوں؟ میری نظر ان کی آخرت پہ ہونی چاہیے اور اپنی آخرت پہ ہونی چاہیے۔ تو یہ میں ان تمام بھائیوں سے کہوں گا جو ان معصوم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ اس کام کو چھوڑ دیں، اللہ بے انتہا برکت دے گا اور جگہوں سے انہیں۔ حضور قرآن کی آیت ہے سورہ حج کہ جو اللہ پہ ایسا توکل کرتے ہیں جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ انہیں بے گمان راستوں سے روزی دے گا۔ آپ محرم کے بعد کیا کہتے ہیں، محرم کے ٹائم کو محرم کی بات یاد آ گئی، عزیز کے منہ پہ لعنت بھیجنی جائز ہے ناجائز؟ اس کے منہ پہ یزید جس نے قتل کیا، سوال یہ ہے یزید کے اوپر لعنت بھیجنی جائز ہے نہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی، نبی کے نواسے کو قتل میں اس کا شامل ہونا ثابت ہے بات۔ تو اگر کوئی لعنت بھیجتا ہے بالکل جائز ہے بات۔ بہت سارے لوگ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کس بنا پہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں پتا، وہ حدیث ضعیف ہے، اس طرح کا معاملہ جو چیز سامنے ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اس معاملے میں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے غم منانا نہیں ہے، وہ تو شہید ہوئے، شہادت تو بہترین چیز ہے، تو اس لیے غم تو منانا نہیں، جو ماتم مناتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتے۔ مگر جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کی ہی پکڑ ہوئی۔ 2 ہی گروہ ہیں یہ سمجھ لینا آپ، ایک اللہ کا گروہ، ایک فرعون کا گروہ، ایک حسینی گروہ اور ایک یزیدی گروہ۔ اپنے آپ دیکھ لینا آپ کس گروہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معافیا کا لڑکا ہے، ثابت ہے۔ ان کا سوال یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت معاویہ کا لڑکا ہے جو صحابی تھے، تو صحابی تو تھے وہ، یہ تو قرآن نے کہا کہ میں بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہوں، انڈے سے مرغی، مرغی سے مطلب
मतलब आप ये देखो ना कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे वो तो हुजूर के खून थे, ख़ानदान से थे, लेकिन काफिर थे, मुशरिक थे। ये कोई ज़रूरी है कि सहाबी का बेटा जो है वो मुशरिक नहीं हो सकता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे जो थे वो मुशरिक थे, अब वो ईमान में आ गए। ऐसे बहुत सारे साहबी थे, जंगें हुई। एक वाक़या तो ऐसा मिलता है एक जंग में कि उनके बेटे जब ईमान में आ गए वो कहने लगे कि अपने बाप से, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, कि जब जंग हो रही थी तो मेरी तलवार के नीचे आप 3 बार आए और मैंने बाप का लिहाज करते हुए आपको छोड़ दिया। तो उन्होंने कसम कहा कि अल्लाह उसके रसूल की कसम है, अगर तुम मेरी तलवार के नीचे एक बार भी आए तो तेरी गर्दन कलम कर देता, क्योंकि तू काफिर था उसको। ये तो हदीस से साबित है बात, तो इसमें कोई रिश्ता ये नहीं चलता भाई। हाँ, ये ज़्यादा सेफ पॉइंट नहीं है कि हम उन्हें बुरा ना कहें, क्योंकि इस पर बहुत सारे स्कॉलर्स के खिलाफ है। मैंने कई स्कॉलर्स को सुना इस मसले में कि ये चीज़ वाले बंदे बहुत सारे। इनका सवाल ये है कि क्या ज़्यादा सेफ है कि हम उसे बुरा ना कहें। अगर आप देखो, मैंने इनके सवाल का जवाब दिया, बेहतर तो यह है कि आप गिबत से बचो, उनका हिसाब अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन इनका जो सवाल था, अगर इनके दिल में लानत आती है तो ये भेजें, मैं नहीं मना कर सकता इन्हें, क्योंकि मैं तो उस गिरोह में नहीं होना चाहता जो लानत नहीं भेजते। मैं तो उस गिरोह में हूँ जो लानत भेजते। मतलब मैं तो अपनी पर्सनल बात बता रहा, ज़्यादा आपको ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, आप उसमें रहो जो सेफ्टी आपको लगे। हाँ, ये आजकल नेट जो भी है, मतलब शौहर और बीवी आपस में बीवी या बेटा आई करे बात चल रही है, तो ये चीज़ें माशरे के अंदर भी आ रही हैं। अच्छा, इनका सवाल बड़ा अच्छा है भाई। बाकी मैंने भी सुनी इस तरह की छोटी छोटी किली बातें हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे को बाबू, बेबी, बेटा ये कहते हैं। तो क्या इस तरह से इनके नाम रखना मोहब्बत के जायज़ है? हाँ, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन बेटा कहना नाजायज़ है, उससे इनके निकाह पे फ़र्क पड़ जाएगा। बेबी या बाबू या बाबा कहना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को लाड में कभी हुमैरा कहते थे, हुमैरा कहते हैं बड़ी बड़ी आंखों वाली हिरन, कभी आयशू कहते थे। तो इसलिए इसमें कोई हरज नहीं है कि अगर किसी को प्यार में कोई बाबू या बेबी कहते या बाबा कहते, लेकिन बेटा बेटी कहना मियाँ बीवी में एक दूसरे को ये तो निकाह ख़राब करता है, चाहे इनकी टेंशन हो या ना हो। हाँ जी, क्या कुरान के प्रोग्राम में हैज़ वाली औरतें आ सकती हैं? इनका सवाल है क्या कुरान के प्रोग्राम में हैज़ वाली औरतें आ सकती हैं? जी भाई, बिल्कुल आ सकती हैं, कोई बनाई नहीं है। अल्लाह के घर में जा सकती हैं, मक्के में मतलब तवाफ़ नहीं कर सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, लेकिन हरम में बैठ सकती है। एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात फरमाई कि ईदगाह में औरतें भी आया करें, तो एक औरत ने पूछ लिया, हुजूर हम तो बाजी औरतें हैज़ से होती हैं, कोई बात नहीं, आओ तुम मतलब मेरा खुतबा सुनने आओ, नमाज न पढ़ना। हुजूर हमारे पास तो पर्दे के लिए कपड़ा भी होता, चाहे तुझे अपनी सहेली से मांगना पड़े, यहाँ तक कहा थी, लेकिन आओ। तो वहाँ तो हुजूर बनफ्स नफीस मौजूद होते थे, जो ईदगाह होती थी उसमें जब ईद का खुतबा दिया करते थे, तो हुजूर ने तलकीन फरमाई कि मेरी स्पीच सुनना हो, जिससे कि तुम्हारा इस्लाह हो तुम्हारी और तुम्हारा तज़किया हो। तो जो भी औरतें कुरान के प्रोग्राम में आएंगी वो कोई नमाज़ें पढ़ने थोड़ी आ रही हैं, उनके कान पाक हैं। आप ये देखो, वो घरों में खाना पकाती हैं और वो तमाम वो काम करती हैं। मैं तो यहाँ तक अपनी बहनों और बेटियों को ये कहता हूँ कि हैज़ के दिनों में कपड़ा लगा के कम से कम नमाज में 5 वक्त बैठे, दुआ तो करें, कम से कम तस्बीह पढ़ लें। देखो, प्रैक्टिस जो होती है उसमें लगी रहें, वरना 8-10 दिन के हैज़ अगर हैं तो उसमें आउट ऑफ प्रैक्टिस होती है, उसके बाद नमाज सजा होने का कोई हरज नहीं है, बिल्कुल। इनका सवाल यह है, इमाम हुसैन का वाक़या मुख्तसर से कभी बयान कर दें। भाई को बहुत कोशिश करने के बावजूद में मेरे से बयान नहीं होता। मतलब मेरा वो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, मुझे पूरे वाक़े का अंदाज़ा है, उसमें क्या क्या ज्ञात की क्या क्या वो हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता हूँ इस मामले में। तो मेरे से आज तक बयान नहीं हुआ, मेरी कोई वीडियो इस पर नहीं है और करूँगा हिम्मत अगर कभी मौका हुआ। ना हुजूर की डेथ का वाक़या मेरे से बयान हुआ आज तक, और ना ही हज़रत हुसैन के करबले का वाक़या। लेकिन ये मेरी कमी है, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा हिम्मत करके कि आप लोगों तक कभी ये पूरा वाक़या बताऊँ। लोग कहते हैं कि लव मैरिज नाकाम होती है, क्या ये ठीक है? इनका सवाल ये है, आपका क्या इरादा है? इनका सवाल इनका सवाल ये है कि लव मैरिज नाकाम होती है, लोग कहते हैं। हाँ भाई, मेरे पास जो केस आते हैं 90% तो मेरा भी मामला यही देखा कि मैंने इसमें अक्सर नाकाम होती है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो लव मैरिज में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो गए, उल्टी सीधी बातें फ़ोन पे
मिलना मिलाना, छूना छुआना, हर वो काम जो निकाह से पहले नहीं होना चाहिए वो करते हैं, उनकी बरकत ख़त्म हो जाती है और अल्लाह नाराज़ होता है। दूसरे इसमें माँ बाप की भी रज़ा नहीं होती। तो माँ बाप की रज़ा के बारे में हुजूर ने फरमाया कि माँ बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा, माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी। तो आप अल्लाह को नाराज़ करके अगर शादी कर रहे हैं तो वो कामयाबी नहीं मिलती। हालांकि जो अरेंज मैरिज होती है उसमें भी चांस होते हैं तलाक़ों के काफ़ी, लेकिन इतने बड़े पैमाने में नहीं होते जितने इसमें नाकामी होती है। तो इसलिए मेरी बहनों, बेटियों, भाइयों, बच्चों, अगर कोई पसंद भी आए तो अपने घर वालों को जाके बताओ और फिर उसे अरेंज करने की कोशिश करो मैरिज को, जो आपको कोई लड़की पसंद आई। पसंद की शादी की मनाही नहीं। इस्लाम में लव मैरिज नहीं है, इस्लाम में लव आफ्टर मैरिज। आप लव करें, लव को अगर आप पसंद नाम दे दें तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप लव के नाम पे मिलना मिलाना, छूना छुआना कर रहे हैं वो हराम है। तो इसलिए अगर वो काम करना आपको तो वो निकाह के बाद जायज़ है, सवाब है, सुन्नत है। हालांकि कोशिश कर रहा था अगर ना पूछूँ, मेरे वजीर ने तो वो यूट्यूब पे आपके क्लिप देखते हैं, उसके बाद मुझसे कहने लगे कि निकाह साहब जो है बड़े ही अंदाज से अपने यकीन के साथ अल्लाह की बात बताते हैं, क्या हमको कोई मुशाहिदा है या इस अंदाज से? लेकिन मैं तो लोग मुशाहिदे कर सकता हूँ सामने। इनका बड़ा पर्सनल सवाल है भाई। इनका कहना यह है कि जिस तरह से मैं पूरे रसूख और यकीन के साथ अल्लाह की चीज़ें बताता हूँ, क्या मुझे कोई मुशाहिदा हुआ? भाई देखो, कुरान की एक आयत यह है कि अल्लाह जिसे चाहता है खींच के अपना कर लेता है, तो वो बिना दिखाए नहीं करता। कुछ मुझे दिखाया ही होगा उसमें, जो मैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह इस लाइन की तरफ आ गया। और मगर मैं बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन इसका मामला ये नहीं है, मुशाहिदे से मुराद मादल्ला ये नहीं है कि मैंने अल्लाह को देख लिया, लेकिन अल्लाह की कारकर्दगी, उसके कारनामे, उसकी शान, वो मुझे बड़ी महसूस हुई है। अब आप ये देखो ना, आपने कोई अपने परदादा को देखा, लेकिन आपको पता है कि वो थे, आपको ये पता है कि जहर खाने से मर जाऊँगा, जहर खाया तो नहीं आपने, लेकिन अंदाज़ा तो है। इसी तरह अल्लाह है। आप यकीन करो, मुझे ऐसे ऐसे मुशाहिदे अल्लाह ने कराए हैं, तभी मैं चेंज हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता कैसे। और आज भी उसकी इतनी रहमतें, इतनी बरकतें हैं, इतना गुनहगार होने के बावजूद आप यकीन करो, जब तन्हाई में मैं होता हूँ तो मुझे अपने ऊपर घिन आती है कि इतना बड़ा अल्लाह, इतना पाक अल्लाह, इतना नापाक में इतनी रहमतें कर रहा है। और अल्लाह अब भी वही है, जो मुझे खींच सके वो आपको भी खींच सके। आपके अंदर अगर अल्लाह से मिलने की ललक है ना, तो वो यहीं मिल जाता है। ऊपर तो बहुत बाद में जाया जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी महसूस करता हूँ हर वक्त अल्लाह। ये बात मैं आपसे, ये बहुत मुश्किल से मैं कह रहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से जुदा नहीं हूँ। हालांकि मेरे अंदर बेइंतहा कमियाँ हुई हैं, जितना मेरा अब तक सफाई हो जानी चाहिए थी 25 साल में, नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी बहुत ही सफाई का इतना बड़ा बदला देना, ये उसकी शान है। मैं डिज़र्व नहीं करता, लेकिन मैं अपनी रेंज पे नज़र नहीं है मेरी, बल्कि उसकी रेंज में नज़र है। उसने पूरी कायनात को चलाना है। एक मेरे अदना से बंदे को उसने अपनी तरफ खींच लिया, मुझे वो सब कुछ दे दिया कि मैं सारी उम्र सजदे में पड़ा रहूँगा। हाय बर्तन सवाल मगर मैंने बता दिया। ये कदर रहमी हराम है, मगर जो रिश्तेदार हमसे मिलना ना चाहें तो हम क्या करें? इनका सवाल यह है, कदर रहमी हराम है, कुरान ने मना किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सही बात है बिल्कुल इनकी, मगर जो लोग हमसे मिलना ना चाहें तो हम उनके साथ कैसा रवैया करें? आप उनके साथ डिस्टेंस इख्तियार करें। अगर वो कहीं दिखे आप उन्हें सलाम कर लें। अगर वो आपका पसंद नहीं करते घर आना तो आप न जाएं, क्योंकि एक चीज़ होती है खुददारी, सेल्फ रेस्पेक्ट, वो आपके अंदर होनी चाहिए, वो फिर आपके बच्चों में जाएगी। अगर आप बेईस हैं, आपसे मिलना नहीं चाह रहे लोग, आप उसके बाद भी मिल रहे हैं अपने रिश्तेदारों से, तो ये बेईसी की बात है। तो आपके अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, खुददारी होनी चाहिए। आप डिस्टेंस के साथ उनसे रखिए, मरना जीना ना छोड़ें और शादी ब्याह ना छोड़ें। अगर वो बुलाएं आपको तो आप जाएं, आप खुद भी उन्हें बुलाएं, ना बुलाएं तो बिल्कुल ना जाएं। इसमें ये वजाहत कर दीजिए कौन से रिश्तेदार, वही रिश्तेदार या वैसे रिश्तेदार? इनका सवाल यह खूनी रिश्तेदार या वैसे रिश्तेदार? तमाम रिश्तेदार भाई। आपने नहीं तोड़ना, आपने जोड़ना है। आपने जोड़ने वालों में गिने जाएंगे अगर आप उन्हें सलाम करते रहे। वो आपसे नहीं भी मिलना चाह रहे हैं, आपके नहीं भी आ रहे हैं और आपको बुला रहे तो आप चले जाओ उनको बुलाने। कहीं दिखे आप सलाम करो और अपना दिल उनकी तरफ से साफ रखो।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहो। उसके बाद भी अगर कोई ज़रूरत होगी तो जन्नत में जाने से पहले हुजूर कुरान ये कहता है कि जितने भी लोग होंगे जन्नती, उन्हें जन्नत से पहले मैं उनके दिल साफ कर दूँगा। तो अल्लाह आपकी कुदरत हल्की फुल्की जो